Hello students. Today we are going to start our new chapter, Diversity in Living Organism. This is part 1 of this chapter. So before starting this new chapter, I want to discuss something that in first chapter, that was cell, and in that we discussed about cell, characteristics of a cell, and then what is prokaryotic and what is eukaryotic cell, and we discussed about plant and animal cells. After that, in next chapter we discussed about tissues. In that we discussed about plant tissues and animal tissues, and what are the function performed by those tissues and how they are helpful and important for us. We discussed about that. In this chapter we are going to have discussion about diversity in living organisms. So in this particular video, this is part 1. What all we are going to have discussion is, some major thing will be in this PowerPoint is introduction about diversity, then what is diversity, what is evolution, and we will have some information about Charles Darwin. Then what is the need for a system of classification? Then we will discuss about what is the basis of classification. Then we will have some assignment. So before starting, we will uh, talk about, now I think you are very much clear about cell and tissues. Once you are very much sure what is cell and what are the function performed by tissues and what are the tissues responsible for a specific kind of functions, so it will be easier for us to read more about diversity, to understand easily about diversity. So let's start with this. Our world is full of organisms. There are variety of organisms. They are having various shapes, various size. They are from minute bacteria, viruses to the big whale and big trees. So there are millions of species, and there are something much more that we don't know about that. So in this chapter we are going to have discussion about diversity in living organisms. So this is the first thing, what is diversity? So diversity is the presence of different organisms in the same ecosystem or geographical location. I hope you are aware about what is ecosystem. Okay, so why we are talking about same ecosystem or geographical location? That's what we are going to discuss. And especially we are going to have discussion about biodiversity. So what is biodiversity? The variety of animals and plants living in a given geographical area is called biodiversity of that geographical area. यहाँ पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यही फोकस करने वाले हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसमें प्लांट भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं. एंड वाई वी आर वरिंग अबाउट डाइवर्सिटी, वाई वी आर गोइंग टू हैव दिस मच डिस्कशन अबाउट biodiversity, why this chapter is given in our syllabus. So we are थोड़े इस पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि डाइवर्सिटी इज़ द नीड फॉर द सर्वाइवल. और आने वाले स्लाइड्स में आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे कि वाई डाइवर्सिटी इज़ द नीड. यहाँ पर कुछ शायद इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी के लिए स्पेशल बात न कही गई हो. यहाँ पे हम लोग डील करेंगे क्लासिफिकेशन से, बट अगेन दैट क्लासिफिकेशन इज कमिंग आउट ऑफ दिस डाइवर्सिटी. इफ देयर इज नो डाइवर्सिटी वी आर नॉट बॉदर अबाउट क्लासिफिकेशन. कोई ज़रूरत ही नहीं उनको क्लासीफाई करने की.
क्योंकि वहाँ पर डाइवर्सिटी है, इस वर्ल्ड में डाइवर्सिटी है, प्लांट्स के अंदर डाइवर्सिटी है, एनिमल्स के अंदर डाइवर्सिटी, बहुत सारे वैरायटी हैं, तो इसलिए हम डाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं। क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम डाइवर्सिटी से अवेयर हैं कि किस पर्टिकुलर एनिमल की क्या नीड है, किस पर्टिकुलर एनिमल को कौन सी चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे कि वो अच्छे से सर्वाइव कर सके, उस एनिमल का उस पर्टिकुलर एरिया में क्या फंक्शन है, उस प्लांट का उस पर्टिकुलर एरिया में क्या फंक्शन है, वो कितना प्रोडक्टिव है, वो हमें वुड देता है कि फ्रूट देता है कि केवल सेड देता है कि सारी चीज़ें देता है, सारी क्वालिटीज़ को देखते हैं, उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कोई भी एनिमल या प्लांट किस तरीके का है, वो यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, उसमें लेबर ऑफ डिवीज़न है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें उसकी डाइवर्सिटी को इनरिच करती हैं। और किसी पर्टिकुलर एरिया में आप देखेंगे कि छोटी छोटी ग्रासेस भी पाई जाती हैं, उससे थोड़ी बड़ी बुशेस भी पाई जाती हैं, झाड़ियाँ भी होती हैं, एंड यू कैन सी वेरी वेल दैट ट्रीज आर आल्सो प्रेजेंट इन दैट। सो दिस वाज about plant variation, and in animals also we can see that there are something which are very minute and which are in middle size, and something whale is there, elephants are there, and they are very big in size. So they are performing various function and their needs are different from each other. So अब हम बात करेंगे इवोल्यूशन की। तो इवोल्यूशन इज द स्लो प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिजम्स चेंज अकॉर्डिंग टू द नीड्स टू सर्वाइव द इन्वायरमेंट अराउंड देम। इवोल्यूशन की ज़रूरत क्या है? जैसे जैसे यू नो आवर अर्थ इज changing, the environment on this earth is changing, and that's why need for the things are changing day by day. You just think about human population. शुरू में हम जंगलों में रहा करते थे और जंगल की चीज़ों को खा के, और बहुत ज़्यादा सिविलाइज्ड तरीके से नहीं, लेकिन जिस भी तरीके से रहते थे, वी वर सर्वाइविंग इन दैट एरा। आज के डेट में भी हम देखिए जंगलों में नहीं हैं कुछ प्रजातियों को छोड़ के, और वी आर वेयरिंग वेराइटी ऑफ क्लोथ्स एंड सो मैनी आइटम्स वी आर ईटिंग इन आवर डेली लाइफ। तो कितना चेंज आया। शुरू में क्या हम खाते थे, आज क्या खाते हैं। शुरू में हम क्या पहनते थे, आज क्या पहनते हैं। इन फ्यूचर व्हाट विल बी देयर वी डोंट नो, वी कैन ओनली एक्सपेक्ट दैट दिस काइंड ऑफ थिंग्स मे हैपन इन फ्यूचर। तो ये जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इवोल्यूशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स एंड मोर डाइवर्सिटी इन द इकोसिस्टम। यू नो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है और आगे भी पढ़ेंगे कि ह्यूमन की ओरिजिन लोग बात करते हैं हम लोग कि कैसे हम आए। हम मंकीज से आए डेराइव करके, कि पहले होमो सेपियंस हुआ करते थे, नाउ वी आर होमो सेपियंस सेपियंस। तो उस समय हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही था, लेकिन थोड़ा मंकी से रिजेम्बलेंस था। हमें लगता था कि वो हमारे एंसेस्टर हैं, और आज भी लगता है, और ये रिसर्च भी बता चुकी है कि यस दे वर आवर एंसेस्टर्स। तो वही हमारे एंसेस्टर हैं। इस चीज़ को इवोल्यूशनरी प्रोसेस से ही हम समझ सकते हैं। तो बात करते हैं चार्ल्स डार्विन की। क्यों हम इनके बारे में थोड़ा जान लें कि ही वाज एन इंग्लिश बायोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट। और गैलापागोस जो आइसलैंड है वहाँ पे वो जाके रिसर्च किए, वहाँ जाके वहाँ के डाइवर्सिटी को देखा, और उन्होंने जो बुक लिखी उसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, और उसी में उन्होंने लिखा थियरी ऑफ इवोल्यूशन। और उन्होंने जो रूल दिया वो आज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। और इवोल्यूशन में उन्होंने बताया कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, कमिंग जनरेशन में आते जा रहे हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस होते जा रहे हैं, हमारे अंदर नए नए ट्रेड्स आते जा रहे हैं,
और हम अपनी सर्वाइवल की कैपेसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं। जितनी एडवर्सिटी बढ़ती जा रही है उतना ही हम अपने आप को फिट करने में, इन्वायरमेंट के से रिलेट करने में सफल हो पा रहे हैं। इसकी वजह से हम सर्वाइव कर पा रहे हैं, और जिसको उन्होंने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। कुछ कोट्स के बारे में अभी आप सोचेंगे कि नहीं इस साइंस में हम कोटेशन को केवल की बात कर रहे हैं, तो दीज कोटेशंस आर नॉट अ सिंपल लाइन्स, you just try to find out meaning out of that. I will read one by one, and we will have some discussion about. Then later on also, if you see this video, you can also think about these quotes, then definitely this will help you in your personal improvement. तो पहला कोट क्या है? A man who dares to waste 1 hour of time has not discovered the value of life. कहा गया है कि ये जो मनुष्य जीवन है, कहा भी गया है हमारे शास्त्रों में कि बड़े भाग मानुष तन पावा। बहुत भाग्य से हमें ये मनुष्य का जीवन मिला है, और अगर इस जीवन में हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, तो चार्ल्स डार्विन ने भी ये बात कही कि इफ़ वी आर वेस्टिंग आवर टाइम मीन्स वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दैट लाइफ। हमें ये पता ही नहीं कि ये लाइफ कितनी वैल्यूएबल है, और ये लाइफ हमें क्यों मिली है, अपने टाइम का हमें किस तरीके से यूज़ करना है। तब यही रीज़न है कि मैं सोच रहा था कि आपको भी ये लाइन थोड़ी समझनी चाहिए, क्योंकि फाइनली सब कुछ पढ़ाई करने के बाद हमको क्या करना है, हमको सोसाइटी में क्या देना है, सोसाइटी ने हमको इतनी सारी चीज़ें दी हैं, तो हम कैसे रिटर्न करेंगे सोसाइटी को, कैसे वी आर गोइंग टू बिल्ड अ हॉलिस्टिक सोसाइटी। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान रखेंगे, अपने टाइम का सदुपयोग करेंगे, तो स्वाभाविक है कि विन वन डे वी विल बी द कंट्रीब्यूटिव मेंबर, मोस्ट कंट्रीब्यूटिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी। एक दिन हम बनेंगे जिसमें सोसाइटी में हमारी इज्जत होगी और हम सोसाइटी को कुछ देने लायक बन जाएंगे। दूसरा कोट वो क्या बोलते हैं? इन लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड एंड एनिमल काइंड टू, दोज हु लर्न टू कोलैबोरेट एंड इम्प्रोवाइज मोस्ट इफेक्टिवली हैव प्रीवेल्ड। इसको समझना है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। किसी की अच्छी चीज़ों को खुद सीखिए, और आपको भी अगर कुछ अच्छी चीज़ हो, आपके पास भी हो, तो आप भी उसे बताइए। और दोनों चीज़ों को मिला के स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि साइंस ऑफ वेस्ट और एंड कल्चर एंड फिलॉसफी ऑफ ईस्ट इफ मिक्स टुगेदर, देन वी कैन बिल्ड अ वेरी स्ट्रांग नेशन। उन्होंने भी ये बात कही थी, और यहाँ भी ये कहा गया है, कोलैबोरेशन की बात करते हैं कि जो कोलैबोरेट करना सीख गया, जो एक दूसरे से सीखना सीख गया और कुछ चीज़ों को लेके अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करना सीख गया, वही आज जिंदा है। और इसी पे उन्होंने रूल दिया था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिट होगा वही फ्यूचर में सर्वाइव करेगा, जो किसी भी तरीके से कमज़ोर है उसका सर्वाइवल फ्यूचर में बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और यही रीज़न था, उन्होंने बताया कि जो स्पीसीज़ प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, अपने आप को इम्प्रोवाइज़ नहीं कर पाई नेचर के डिमांड के हिसाब से, वो एक्सटिंक्ट हो गई, वो गायब हो गई। और तीसरा कोट उन्होंने कहा कि माई माइंड सीम्स टू हैव बिकम अ काइंड ऑफ मशीन फॉर ग्राइंडिंग जनरल लॉज आउट ऑफ लार्ज कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। उन्होंने अपनी रिसर्च में यही कहा था कि इतनी रिसर्च करने के बाद जो निचोड़ आई है, वही निचोड़ आप ये जो लॉज हैं, जो नियम हैं इवोल्यूशनरी लॉ में, आप वो देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने रिसर्च करके तब जाके हमें ये सिंपल लॉज बताए, सिंपल टर्म्स में बताए, जो आज तक हम उसे पढ़ रहे हैं। तो कब इन्होंने अपनी बुक लिखी थी? 1859 में। और उन्होंने इवोल्यूशनरी रिलेशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी बताया। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप में क्या उन्होंने बताया
कि जो भी ऑर्गेनिज्म आप देख पा रहे हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दे ऑल आर इवॉल्व फ्रॉम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब एक छोटी छोटी चीज़ों से, एक जो हमारी लाइफ जो ओरिजिनेट हुई है वो बहुत ही छोटी यूनिट से ओरिजिनेट हुई है। और शुरू में जो बॉडी आई वो छोटी थी, सिंपल थी, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी। और आज जो हम बॉडी देख रहे हैं वो हाईली कॉम्प्लेक्स है, जो कि सिंपल बॉडी से डिराइव हुई। उन्होंने ये भी बताया कि ये जितना भी इवोल्यूशन हुआ उसी इवोल्यूशन का ही नतीजा है, उसी का ये रिजल्ट है कि वी आर सीइंग ह्यूज डाइवर्सिटी इन लाइफ फॉर्म्स एंड बिकॉज ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री ऑल ऑर्गेनिजम्स आर रिलेटेड। तो चूँकि सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से सारी चीज़ें इवॉल्व हुई है, तो कहीं ना कहीं हमारी जो एंसेस्ट्री है, जो हमारे पूर्वज हैं, वो सेम हैं। बट इन कोर्स ऑफ टाइम इवोल्यूशन होता गया, इम्प्रोवाइजेशन होता गया, एंड वी आर हैविंग वैरायटी इन आवर बॉडी स्ट्रक्चर। और इसी को आज हम क्लासिफिकेशन का बेस समझ सकते हैं कि कैसे जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, वैसे वैसे हम उसको क्लासिफाई करते गए। तो क्यों ज़रूरत पड़ गई, वाई देयर इज़ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन? सो वेरी सिंपल फैक्ट दैट बिकॉज ऑफ ह्यूज डाइवर्सिटी वी आर नीड टू हैव some kind of classification. That's why that will be very easy for us to study about each of them, and it will make us very easy to have information about various kind of animals and plants present in this world. So that's why there is need of a system of classification. Why we are talking about system? Because if it is a system, then it will be in organized form, and if it is an organized form, it will be very easy for us to study about them and we will have clear picture about them. तो सबसे पहले जो बात आई एरिस्टोटल की, एरिस्टोटल कौन थे? ही वॉज अ ग्रीक फिलोसोफर। इन्होंने एजुकेशन में, फिलॉसफी में बहुत सारी चीज़ों को बताया, और लोग लेक्चर मेथड को फॉलो करते थे, कहीं से भी चीज़ों को बताना शुरू कर देते थे। तो अपने ज़माने में ये बहुत ही फेमस हुआ करते थे। इवन हिज कोट्स, हिज थॉट्स एंड हिज लेक्चर्स आर इवन रिलेवेंट इन दिस एरा आल्सो। तो इन्होंने सबसे सिंपल तरीके से बताया कि हम दो तरीके से बांट सकते हैं, द ऑर्गेनिज्म विच आर फाउंड ऑन अर्थ, they are terrestrial, and which are found in aquatic habitat, they are aquatic. तो इन्होंने सिंपल तरीके से बांट दिया एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल में। लेकिन ये काफ़ी नहीं था, कुछ समय के लिए तो ये चीज़ें चली कि ठीक है, कोई बात नहीं। when there was no knowledge about classification, there was no base of classification, so that time it was accepted, but later it was criticized। क्या क्या ड्रॉबैक थी? Both in sea as well as on land we can find animal and plant. Moreover, there are very small animals like seahorse along with large animals like whale. So this was not a good basis of classification. तो वहाँ ये देखा गया कि पानी में भी पौधे हैं, ज़मीन पर भी पौधे हैं, पानी में भी एनिमल हैं, ज़मीन पर भी एनिमल हैं, पानी पर में भी छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे भी हैं। तो इट वाज नॉट क्लियर, इट वाज नॉट एनफ फॉर गेटिंग आर डिवाइडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दैट टाइम। तो एक समय तक तो ठीक था कि चलो कोई जानकारी नहीं, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट होता गया, जैसे जैसे हमें ज़्यादा जानकारी होती गई कि इवन समथिंग मोर इज़ प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, तो इसे छोड़ दिया गया। तो क्या आया साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में? तो हमने चीज़ों को और क्लियर तरीके से सोचना शुरू किया।
तो उसमें क्या क्या क्लैरिटी आनी शुरू हुई। तो सबसे पहले जो बेसिस था उसमें ये था कि प्रेजेंस आर एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द सेल। तो वेदर दैट cell is having nucleus or not. So based on that, the organism was divided into two parts, that is prokaryotes and eukaryotes. You know very well in chapter cell there was discussion about prokaryotic cell and eukaryotic cell. So in same way the organism which are having nucleus, they are considered as eukaryotic organisms, and organisms without a defined nucleus are considered as prokaryotes or prokaryotic organisms. So this was the first basis of classification on the basis of presence or absence of nucleus in the cell. In second, the number of cells in an organism, how many numbers, whether it is unicellular or multicellular. So if the organism is having single cell, then it will be termed as unicellular organism, and it will be put into category of unicellular organism. And at the same time, if that organism is having multicellular, many number cells, so it will be considered as multicellular organism. If there is multicellular level of organism, there definitely there will be division of labor. डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब ये है कि अलग अलग सेल्स, अलग अलग पार्ट जो होंगे वो अलग अलग काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो इसको हम आपको और आगे बताएंगे कि कैसे अलग अलग सेल्स, अलग अलग पार्ट अलग अलग काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, देखते हैं। और तीसरा जो कैटेगरी रखा गया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या वो खाना अपने से बना पाते हैं या दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अगर वो अपने से खाना बना लेते हैं तो उनके पास क्लोरोफिल होना चाहिए। अगर उनके पास क्लोरोफिल है तो देन दे आर ऑटोट्रॉप्स। इफ़ दे डोंट हैव क्लोरोफिल एंड दे आर नॉट एबल टू मेक देयर ओन फूड, देन दे आर कंसिडर्ड एज हेट्रोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स। तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रखे गए, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एट्सेट्रा बिलोंग्स टू हेट्रोट्रॉप्स। तो और very known to all of you that autotrophs, what are autotrophs, okay. And fourth level of classification was the level of organization in body, level of organization। अभी तक हमने बात किया कि whether it is having nucleus, the second was it was whether the organism is unicellular or multicellular, and then third we discussed whether it is capable of synthesize their own food, and this fourth one, what is the level of organization in body. So even the organism is multicellular, so that particular group of cells are assigned a particular function. Here we are talking about group of cells, means individual cells that are existing in group. But in larger organism, tissues, there in Hydra we are talking about group of cells, but in larger organism we are talking about tissues. हाइड्रा, आपको समझना होगा कि हाइड्रा जो है वो मल्टीसेलुलर है, बट देयर इज़ नो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये और अच्छे से जब आप और डीप जाएंगे क्लासिफिकेशन में तो और हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, अपकमिंग स्लाइड्स में, अपकमिंग वीडियोस में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बस यहाँ हमें समझना है कि व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट आर द साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी पे हम बात कर रहे हैं कि जो लार्जर ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स वगैरह लें, तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास टिश्यू सिस्टम है, एंड वी आर हैविंग वेरियस ऑर्गन फॉर परफॉर्मिंग वेराइटी ऑफ फंक्शन। एट द सेम टाइम इन प्लांट्स आल्सो हमने बताया था कि जो पौधे हैं उनके पास भी डिवीज़न ऑफ लेबर है। कोई वाटर के एब्जॉर्प्शन का काम करता है, कोई फोटोसिंथेसिस का काम करता है, कोई मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट का काम करता है, कोई फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो इस बेसिस पे हम चीज़ों को डिवाइड करते आ रहे हैं, और ये वेल एक्सेप्टेड साइंटिफिक वे ऑफ क्लासिफिकेशन है। हम एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज
presence or absence of nucleus in the cell. The second one is number of cell in an organism. Third one is what is the mode of taking food, what is the mode of nutrition, and the fourth and last one is level of organization in body. So in that way we discussed about what is diversity, what is biodiversity, and how we can classify the organism. Before that we also discussed about what is evolution and who was Charles Darwin and how he gave his evolutionary laws, and what is the meaning of survival of fittest. And we discussed about the book Origin of Species written by Charles Darwin. So that's all discussion about this particular introduction part 1. So now you have to do, you just try to find out in assignment portion, just find out कि कुछ और भी क्लासिफिकेशन थे क्या, कुछ और भी बेसिस था. जैसे एरिस्टोटल ने कहा कि एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एनिमल के बेसिस पे हमने चीज़ों को डिवाइड कर दिया, एंड दैट वाज द वन फेमस वे ऑफ क्लासिफिकेशन इन ओल्डन डेज. तो कुछ ऐसा और भी था. सो ट्राई टू फाइंड आउट. सो these are the resources. Okay, and that's all for the day. Thank you. Jai Hind.